Hi kids, let's do question and answers for our chapter The Peacock and the Crane. तो पहला क्वेश्चन क्या है? Read the following sentences carefully and choose the correct meaning. The peacock had a gorgeous tail like no other bird. Peacock की tail जो है वो इतनी खूबसूरत थी कि किसी और चिड़िया की टेल जो है इतनी खूबसूरत नहीं थी, तो सबसे ज्यादा खूबसूरत थी उसकी टेल। तो कौन सा सेंटेंस है जो ये सेम मीनिंग बता रहा है? द पीकॉक्स टेल वॉज मोर ब्यूटिफुल देन एनी अदर बर्ड्स। तो और जितनी भी चिड़िया थी उन सब में सबसे ज्यादा खूबसूरत जो है पीकॉक की टेल थी। फाइन फेदर्स डोंट मेक फाइन बर्ड्स। इसका करेक्ट आंसर है समथिंग दैट लुक्स ब्यूटीफुल मे नॉट रियली बी यूजफुल। यानी जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास बहुत ही खूबसूरत पर हैं तो आप बहुत अच्छी चिड़िया भी हो। यानी हो सकता है आपके पर बहुत खूबसूरत हैं पर आप उड़ ही ना पाओ, जैसे कि पीकॉक, उसके पर इतने खूबसूरत होते हैं पर वो उड़ नहीं पाता है, राइट? तो वो कैसी चिड़िया हुई जो उड़ ना पाए? तो जरूरी नहीं है कि अगर कोई चीज बहुत खूबसूरत लग रही है तो वो काम की भी हो। Read the story aloud or present it in groups of three: the narrator, the peacock and the crane. तो ये स्टोरी जो है अगर आपको तीन लोगों के ग्रुप में प्रेजेंट करनी हो, जिसमें एक नरेटर होगा, एक पीकॉक होगा और एक क्रेन, तो आप कैसे करोगे? ऐसे. Here's how the story can be presented with three people taking on the roles of the narrator, the peacock and the crane. Narrator: There was once a very conceited peacock who had a gorgeous tail like no other bird. So when he met a crane one day, the peacock scoffed at the crane's colorless and dull feathers, and immediately spread his own colorful tail for the crane to see and admire. Peacock proudly: Look at my feathers, how they shine in all the colors of the rainbow, while yours are so pale. I am dressed like a king. Narrator: The crane looked at the peacock and his beautiful feathers. Crane calmly: That's true, but I can fly high above, among the clouds and the stars, and I can see all the beauty of the earth in all its glory, while you live down here just like any other cock. Narrator: The moral of the story is fine feathers don't make fine birds. Question number 3. Imagine you are the crane. What actions and words of the peacock would you not like? Write about it in short. As the crane, I wouldn't like how the peacock is so full of himself and looks down on me just because of my plain feathers. His bragging about his colorful tail and making fun of mine would be rude. It's unfair that he only cares about looks and ignores the amazing things I can do, like flying high and seeing the world from above. Discuss what a friendly and good-natured peacock would say to a crane. Write his speech. A friendly and good-natured peacock would say to the crane, Hello, crane. Your feathers might be plain, but I admire how you can soar high in the sky. It must be incredible to see the world from up there. I may have colorful feathers, but I wish I could fly as high as you do. We both have our unique qualities that make us special. It's great to meet you and share our different strengths. Find one more example which shows that a beautiful appearance is not enough. There was a beautiful rose with a vibrant red petals that often mocked the plain tall sunflower. One hot day the rose began to wilt in the sun, unable to handle the heat. Meanwhile the sunflower thrived, turning its face to follow the sun. The rose realized that while she was beautiful, she lacked the strength and resilience of the sunflower. The moral is beauty alone is not enough. Strength and resilience are also important. तो यहाँ पे आपको एक और एग्जाम्पल देना है ये बताने के लिए कि जरूरी नहीं है खूबसूरती जो है वो काफी हो, और भी चीजें जो है वो चाहिए होती हैं। तो यहाँ पे मैंने जो एग्जाम्पल दिया है वो रोज और सनफ्लावर का दिया है कि जब धूप बहुत तेज होती है तो रोज जो है वो मुरझाने लगता है, जबकि सनफ्लावर जो है वो सूरज की रोशनी में और ज्यादा खिलता है। तो इससे हमें पता चलता है कि खूबसूरती जो है वो अपने आप में काफी नहीं है, हमारे अंदर जो है ताकत भी होनी चाहिए और रेजिलियंस भी होनी चाहिए। रेजिलियंस यानी कितनी भी मुश्किलें आए हम उनका डट के सामना करें, हम हार नहीं माने। तो ये हमारे अंदर शक्तियां होनी चाहिए। List 5 adjectives and 5 nouns from the story. Adjectives क्या होते हैं? ऐसे words जो noun को describe करते हैं। noun को कोई भी चीज जो describe करे वो होती है adjective। जैसे मैं बोलूं शीला is a good girl, तो शीला जो है वो noun है, राइट? और उसे मैंने कैसे describe किया है? good करके, कि वो अच्छी लड़की है। तो ये good क्या हुआ? ये adjective हुआ। तो आपको स्टोरी में से 5 एडजेक्टिव और 5 नाउन जो है वो लिखने हैं।
तो एडजेक्टिव्स कौन से हैं? कंसीटेड, गॉर्जियस, कलरलेस, डल एंड कलरफुल। नाउन्स हैं पीकॉक, क्रेन, फेदर्स, टेल एंड क्लाउड्स। Find 5 adjectives that end with A, full, and B, less. Then write the antonym of each. तो आपको 5 adjective लिखने हैं जो कि end होते हैं full से, और 5 ऐसे जो end होते हैं less में, और फिर इनके antonym यानी इनके opposite भी लिखने हैं। तो 5 adjective जो FUL में end होते हैं, full में end होते हैं, वो कौन से हैं? Beautiful, joyful, colorful, helpful और powerful। ब्यूटीफुल का एंटोनिम क्या हुआ यानी ऑपोजिट? अगली। जॉयफुल का सैड, कलरफुल का कलरलेस, हेल्पफुल का अनहेल्पफुल और पावरफुल का पावरलेस। ऐसे एडजेक्टिव्स जो लेस में एंड होते हैं वो हैं होपलेस, फियरलेस, केयरलेस, यूजलेस एंड वर्थलेस। होपलेस का एंटोनिम है होपफुल, फियरलेस का फियरफुल, केयरलेस का केयरफुल, यूजलेस का यूजफुल एंड वर्थलेस का वैल्यूएबल। नेक्स्ट जो है हमें प्रोवर्ब्स के बारे में बताया गया है। प्रोवर्ब्स क्या होते हैं? शॉर्ट सेंटेंसेस होते हैं या फ्रेजेस होते हैं जिसमें हमें कोई एडवाइस दी जा रही हो, और ये जनरली जो है ये सच होती है, अच्छी एडवाइस होती है। जैसे कि एग्जांपल है अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। इसका क्या मतलब होता है कि अगर कोई काम जो है वो आप टाइम पे कर लो तो आपका फ्यूचर में जो है बहुत सारा समय बच जाएगा। जैसे कि अगर मैं अभी आपको बोलूं कि आप जो है रोज थोड़ी थोड़ी पढ़ाई कर लो, अपना होमवर्क जो है वो कंप्लीट कर लो, तो फ्यूचर में आपको ऐसा नहीं होगा कि एक दिन जब टीचर बोलेंगे कि आज आपकी बुक सबमिट होनी है तो आप सब जो है फिर सब साथ में करो, तो उसमें क्या है आपका कितना सारा टाइम वेस्ट होगा। बट धीरे धीरे रोज अगर आप अपना काम कंप्लीट करते रहो तो आपको जो है फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ऐसे ही जो है और बहुत सारे प्रोवर्ब्स जो है वो होते हैं। तो यहाँ पे कुछ प्रोवर्ब्स जो है आपको बताए गए हैं, जैसे कि अपीयरेंसेस कैन बी डिसेप्टिव, यानी जो है कुछ लोग जो है देखने में बहुत अच्छे लग सकते हैं बट उससे धोखा भी हो सकता है। तो जरूरी नहीं है जो जैसा दिख रहा है वो वैसा ही हो। डू नॉट जज बाय अपीयरेंस, अ रिच हार्ट में बी अंडर अ पुअर कोट। तो आपको जो है किसी को भी जज नहीं करना चाहिए उसकी अपीयरेंस में, कि वो कैसा दिख रहा है उस पे उसको जज नहीं करो। हो सकता है कि कुछ लोग जो है वो देखने में बहुत गरीब हो और कुछ जो है वो देखने में बहुत ही अमीर हो, बट जरूरी नहीं है वो दिल के भी अच्छे हों। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, तो हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है। यू कांट टेल अ बुक बाय इट्स कवर, तो कोई कवर जो है खाली देख के आपको पता नहीं चलेगा कि ये किताब जो है कितनी अच्छी है। ऐसे ही जो है किसी इंसान को देख के ही आपको नहीं पता चलेगा कि वो अच्छा है या बुरा है। क्लोथ्स डू नॉट मेक द मैन, इंसान जो कपड़े पहनता है वो उसको नहीं बनाते, राइट। ऐसा नहीं है कि आपने अच्छे कपड़े पहने तो आप अच्छे हो, आपने बुरे पहने तो आप बुरे हो। आप अंदर से इंसान कैसे हो उस पे वो जो है कपड़ों पे डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट जो है आपको दो और फेबल्स के एग्जाम्पल जो है यहाँ पे लिखने हैं। फेबल्स क्या होते हैं? लोक कथाएं, ऐसी कहानियां जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है, यानी आपके दादा नानी ने जो है आपको बताई, आप अपने बच्चों को बताओगे, आपके बच्चे उनके बच्चों को। तो ऐसे जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो स्टोरी जो है वो कंटिन्यू होती जाती है, उसे हम फेबल्स कहते हैं। तो ऐसे दो एग्जाम्पल जो है मैंने यहाँ पे, एक तो टॉर्टोइज एंड द हेयर की स्टोरी और दूसरे फॉक्स एंड द ग्रेप्स की दी है। अगर और भी कोई स्टोरीज आपको पता हो जो फेबल्स हैं तो आप वो भी यहाँ पे जो है लिख सकते हो। Thank you for watching. If you liked the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you.